کالجز کا، تو وہاں اصل مقصد عصری علوم کی تعلیم ہے اور ضمن دینی تعلیم بھی پڑھا دی جاتی ہے۔ اس کے بالمقابل اگر مدارس کو دیکھیں تو وہ اپنا اصل مقصد صرف دین کی بقا اور اس کی تعلیم کو سمجھتے ہیں، اور ضمن کچھ جگہ پر عصری تعلیم بھی کچھ پڑھا دی جاتی ہے۔ تو اس طرح مقصد دونوں کا الگ ہے، لیکن ہماری خواہش ہے اور موقع ہے نیو ایجوکیشن پالیسی میں کہ ہم دونوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا سکتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں تاکہ بنیاد ہماری مضبوط ہو جائے۔ اب نیو ایجوکیشن پالیسی میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا موقع دیا ہے، وہ ہے شروع کے 5 سال۔ ایک طرف 2 سال گورنمنٹ نے اسکول میں داخلے کی عمر بڑھا دی، جو پہلے 5 سال میں پہلی کلاس میں ہوتا تھا اب 7 سال میں ہوگا۔ دوسری طرف پہلی اور دوسری کلاس کو پرائمری سے نکال کر فاؤنڈیشن میں رکھ دیا، تو کہیے کہ پہلے ہمارا بچہ تیسری کلاس میں 7 سال کی عمر میں داخل ہوتا تھا، اب 9 سال کی عمر میں ہوگا۔ تو 4+ سے لے کر 9 ایئرس تک ہمارے پاس 5 سال ہیں، ہم اپنی مادری زبان میں بچے کو اپنے اعتبار سے پڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھا موقع ہے، الحمدللہ ہم نے اس پر کام کیا تھا، لیکن سامنے صرف مدارس تھے، میڈیم انسٹرکشن اردو تھا تاکہ اردو کو فروغ ملے، اور دوسرے اگر آپ جائزہ لیں کہ ہمارے مدارس چاہتے ہوئے بھی گورنمنٹ آف انڈیا کی خواہش کہ NCERT کو اپنے کیوریکلم میں شامل نہیں کر پا رہے ہیں، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، ہم چاہتے بھی ہیں لیکن کبھی نہیں کر پاتے۔ اس کی وجوہات یہ ہے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس ٹرینڈ ٹیچر نہیں ہیں، ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے، اور سب سے بڑی پرابلم وقت کی ہے۔ اگر آپ ایک طرف NCERT کوریکلم کو رکھیں، دوسری طرف دینی تعلیم کو رکھیں جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے یا مکاتب میں پڑھائی جاتی ہے، تو دونوں کے لیے 5-6 گھنٹے درکار ہے، یہ 12 گھنٹے کہاں سے آئیں؟ ہم نے کمپوزٹ ٹیچنگ میتھڈولوجی کے ذریعے سے اس کو حل کیا ہے، جس میں ٹائم مینجمنٹ کر کے دونوں کو ایک ساتھ پڑھایا ہے، یعنی اب عصری علوم بھی کمپوزٹ ٹیچنگ میتھڈولوجی کے ذریعے، جس کی ٹریننگ ابھی ہم نے پوری کی ہے 50 علماء کرام کو، جس میں 10 مستورات بھی تھیں، ان کو ٹرین کیا ہے مدارس کے۔ یہ 27 فروری سے 5 مارچ تک پروگرام چلا، الحمدللہ وہ بہت خوش ہیں کہ نئے طریقے سے ہم بڑی اچھی طرح اپنی تعلیم کو فروغ دے سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہم اپنے بچوں کا فاؤنڈیشن مضبوط کر سکتے ہیں، چاہے وہ اسکول کے ہوں چاہے مدارس کے ہوں، اور جب ان کی فاؤنڈیشن مضبوط ہو جائے گی تو وہ پھر کہیں بھی جائیں، چاہے وہ اپنی مرضی سے اعلیٰ تعلیم کے لیے مدارس میں جائیں، چاہے وہ عصری علوم کے لیے میڈیکل انجینئرنگ وغیرہ میں جائیں۔ ہمارا خاکہ KG سے لے کر 12ویں تک تیار ہے، کتابیں پرائمری کی تیار ہیں، اور پرنٹنگ صرف KG کی ہوئی ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اس کے ایکسیپٹنس کے بعد جیسے جیسے لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے رہیں گے، اور الحمدللہ ایکسیپٹنس شروع ہو گیا ہے، ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اس کے اندر سب سے بڑی چیز ہم نے یہ کی ہے، ابھی تک جو دینی تعلیم کی کتابیں تھیں، ایک تو کتابوں کو خوبصورت بہت بنایا ہے تاکہ بچہ ہاتھ میں لے کر کے سوچے کہ ہمارے پاس انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی کتاب ہے۔ دوسرے، ہم نے اس میں کمپلیٹ سلیبس کو ڈیزائن کر کے لکھ دیا ہے۔ تیسری چیز، علماء کرام سے اس کو ریویو کرایا ہے۔ چوتھی بات، ہمارے کیوریکلم میں دینیات کے وہ سارے کمپوننٹ موجود ہیں جو ہماری مدارس میں مکاتب میں پڑھائی جانے والی کتابوں میں ہیں۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ اس تمام کتابوں کو جمع کر کے ہم نے اس کو 6 حصوں میں بانٹ دیا ہے، اور اس طرح سے ہم نے ان کو ان کتابوں میں جمع کر دیا ہے۔ دوسری بات، نورانی قاعدہ دن بھر بچہ پڑھتا تھا، کچھ اور نہیں کرتا تھا، صرف پڑھنا۔ ہم نے اس کو 4 کتابوں سے ریپلیس کر دیا ہے۔ وہ 4 کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، آنے کے لیے آپ چاہیں تو اور ان کو لے بھی سکتے ہیں۔ پہلی کتاب عربک اردو رائٹنگ 1 ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے۔ بچہ ایک دن میں ایک ایکسرسائز کرے گا، 3 دفعہ کرے گا، اس کے اندر
लाइनों की मशक भी आ जाएगी और हरूफ की मशक भी आ जाएगी और उसके बाद फिर ये अल्फाज बनाने की मशक है। तो वक्त कम है वरना मैं इसकी तफसील में जाता। एक साल 2 ज़बानें अरबी और उर्दू बच्चा सीख जाएगा। सिर्फ 8 हरफी का तो फ़र्क है, बनाना तो एक ही तरह होता है। और अभी तक वो सिर्फ पढ़ता था, हमने चूँकि लिखना इंट्रोड्यूस किया है तो पढ़ना भी साथ में हो जाएगा। और असातिज़ा किराम उनको जो मखारिज वगैरह बताते थे वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो 10 हफ्ते पहली किताब, 10 हफ्ते दूसरी किताब, 10 हफ्ते अंग्रेज़ी की किताब, 10 हफ्ते हिंदी की किताब। तो एक साल में बच्चा रूहानी फ़ायदे के साथ 4 ज़बानें सीख सकता है। उसके साथ हमने जो टाइम टेबल इसमें मुरतब किया है, यानी पहले इस टेक्निक को बता दें, अभी तक LSR टेक्निक थी, हमने इस टेक्निक का नाम LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग रखा है। उसके बाद अलावा हमारे यहाँ हमारे करिकुलम में पहले ही दिन से KG में कम्युनिकेटिव अरबी और इंग्लिश भी है। मैथमेटिक्स है, जब आप पढ़ाते हैं अलिफ खानी पे के नीचे एक नुक्ता के ऊपर 2 नुक्ते, 7 के ऊपर 3 नुक्ते, तो अगर गिनती नहीं मालूम तो मीनिंगलेस है। 0 का मतलब क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है। तो उस मकसद को हमने बयान करने के लिए NCERT के करिकुलम से लेकर मैथमेटिक्स की किताब डिज़ाइन की। ये सारी किताबें बाईलिंगुअल हैं, इंग्लिश एंड उर्दू। इसके अलावा कंप्यूटर, नो थिंग्स अराउंड यू, आसपास की जगह जानिए, और मार्शल आर्ट भी हमारे कोर्स में है। हम ये समझते हैं कि हमारी 3 खुसूसियात अल्लाह ताला ने हमें दी हैं। एक, जिस्म मजबूत होना चाहिए ताकि हम इबादत भी अच्छी तरह कर सकें और वक़्त अपनी हिफाजत भी कर सकें। उसके लिए हमने मार्शल आर्ट का कोर्स इंट्रोड्यूस किया है और हमारे बच्चों ने प्राइमरी के अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल गवर्नमेंट के कंपटीशन में लिया है। इसी लॉकडाउन में शुरू किया और इसी लॉकडाउन में हमने उनकी ट्रेनिंग की है। तो इस तरह ये टाइकोंडो भी हुआ। अब रही बात टाइम टेबल की, अभी तक 12 घंटे या 6 घंटे या 8 घंटे बच्चा सिर्फ रूहानी क़ायदा पढ़ता था। हमने 2 घंटे रीडिंग एंड राइटिंग के हैं, 2 घंटे दीनियात और आदाब ज़िंदगी के हैं। इस किताब में खुद इसका नाम तालीमी व तरबियती निसाब है। टीचर्स की ट्रेनिंग भी है और बच्चों की तालीम भी है। इसमें 20-25 पेजेस इसी काम के लिए हैं कि क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए। उसके अलावा हमने तकरीबन 150 पेज का मैनुअल भी डिज़ाइन किया है ताकि वो उनको सही तरह पढ़ा सकें। इंटरवल में हमारे यहाँ उर्दू बोलना मना है, मादरी ज़बान बोलना मना है। इंटरवल में हम अरबी बोलेंगे और इंग्लिश बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कब बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, इसमें लेसन प्लान मौजूद है। पहले हफ्ते में हम सिर्फ व्हाट इज़ योर नेम, उसका जवाब, दूसरे हफ्ते में माय स्कूल, उसका जवाब, और तीसरे हफ्ते में माँ मादाली। अब ये खेल का वक्त है, बच्चा आज़ाद है, कपड़े भी खींचेगा, गाल भी खींचेगा और बताएगा कि ये क्या है, पूछेगा तो उसका जवाब भी ज़रूरी है। बहुत ही मुख्तसर अंदाज में कहा गया है। ये मुख्तसर किताबों का तारुफ था। alqalamindia.com हमारी वेबसाइट है, उस पर आप तफसील से देख सकते हैं, किताबों के बारे में भी हैं। और 1-2 दिन के बाद हमारी ई बुक भी उस पर लोड हो जाएंगी, तो बाकायदा किताब को खोल कर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, सिस्टम, हम ये चाहते हैं कि मदारिस का सिस्टम चंदा बेस्ड ना हो। अभी लॉकडाउन में आपने देखा एक बड़ी तादाद हमारे मदारिस से जुड़े हुए लोगों की, चूँकि सस्टेनेबल सिस्टम नहीं है तो वो सड़क पर आ गए, फाकों की नौबत आ गई। और बाज़ों के बारे में पता चला कि फाकों की नौबत क्या, उन्होंने खुदकशी तक कर ली हालात के अतबार से। अल्लाह ताला हिदायत फरमाए। तो उसके पेश नज़र हमारा मानना ये है कि हमारा तालीमी निज़ाम बेस्ट होना चाहिए और गरीबों की मदद का अलग से इंतजाम होना चाहिए। सब तो गरीब नहीं होते, लेकिन सबके लिए हम चंदा करें, परेशान करें, ये मुनासिब नहीं। और क्वालिटी जब भी अच्छी होगी जब हमारी किताबें भी अच्छी हों, हमारे असासा भी अच्छे हों। तो ये एक कंपोजिट सिस्टम है जिसका नाम हमने मॉडल मदरसा सिस्टम रखा है। मॉडर्न नहीं है, मॉडल, मिसाली। मॉडल मदरसा सिस्टम एक निज़ाम है, मदरसा नहीं है। जो भी इसको निज़ाम को अपनाएगा, ट्रेनिंग हमारे ज़िम्मे है, हम फ्री ट्रेनिंग देंगे। किताबें हम इसमें कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं, जितने हमारी कॉस्ट आ रही है उतनी ले रहे हैं। बाकी MRP पे मदरसे की जिम्मेदारी है, चाहे बेचे, हम उससे कोई इतराज़ नहीं है। अलबत्ता जो बच्चे किताब नहीं खरीद सकते, हमारा मानना ये है कि ज़कात से, खैरात से, किसी की मदद से उनकी मदद अलग से की जाए ताकि वो किताब ले सके और वो पढ़ सके। जहाँ जहाँ ये शुरू हुआ है, अल्लाह के शुक्र बहुत अच्छे नताइज हैं, बच्चे बहुत खुश हैं, लोग भी बहुत खुश हैं। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तरफ तलबा की तालीम स्टैंडर्ड अच्छा होगा, दूसरी तरफ हमारे जो अवाम है वो जुड़ेगी कि हमें दोनों चीज़ें एक ही जगह पर मिल रही हैं। स्कूल की तालीम भी मिल रही है और मदारिस की तालीम भी मिल रही है। तो अगर वो
1000 रुपये स्कूल में देते, 200 रुपये कारी साहब को देते कुरान पढ़ने के, तो 1200 रुपये खर्च होते। यहाँ वो सिर्फ 500 रुपये देते और 500 रुपये में स्कूल की जरूरत पूरी हो जाएगी, लोगों के सामने हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा और तालीम भी अच्छी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर 150 बच्चे आपके यहाँ हैं, 500 रुपये अगर आप फीस रखते हैं। एक जगह हम गए नोएडा के करीब एक गाँव में, उन्होंने कहा नहीं साहब 1500 रखेंगे। हमने कहा हमें क्या इतराज़ है। हैदराबाद में हम गए, वहाँ स्कूलों ने बनाना शुरू कर दिया और बल्कि हिंदी को तेलंगाना में तेलुगु में ट्रांसलेट कर लिया है, तो बात मेरी ख़त्म ही है तकरीबन। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि निज़ाम तालीम का बेस्ट होना चाहिए, गरीबों की मदद का अलग से इंतजाम होना चाहिए। 150 का मॉडल मैं आपको बता दूँ कि 150 बच्चे अगर हैं, 80% गुरबा हैं, तो उनको फीस लेंगे आप 500 रुपये अगर, तो 60,000 रुपये हो गए। तो 60,000 रुपये में आप 6 टीचर को 10,000 रुपये दे सकते हैं। अगर 300 रुपये लेंगे तो 6,000 दे सकते हैं। और जिनकी फ़ीस आप जो गरीब हैं उनको मदद कर रहे हैं, वो उनको उनकी फ़ीस माफ़ नहीं करनी, उनकी मदद करनी है स्कॉलरशिप से किसी और से, वो भी फीस देंगे, वो पैसा भी आपके पास आएगा और वो डेवलपमेंट के दूसरे कामों में ले सकते हैं। तो इस तरह ये हॉलिस्टिक अप्रोच है, कंप्लीट सिस्टम है, जिसको अपनाने के बाद हम NCERT या उलूम को पढ़ा सकते हैं और मदारिस की तालीम को इस्लामिक पर्सपेक्टिव में पढ़ा सकते हैं और इंशाअल्लाह हमारे तालीमी मसाइल भी हल होंगे, हमारे माशी मसाइल भी हल होंगे। उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसको आसान कर दे और कबूल फरमाए और कबूलियत हो रही है। शुक्रिया।